thank you all for being here. It's a pleasure seeing a good audience, and of course, we'll try to keep you connected and keep you entertained as far as possible without actual music being there. Let me first introduce the panel to you. We have a very able and diverse panel. On my left, I have Dr. Taimur Rahman, who's an associate professor of political science at LUMS. And you all might know him since he's the founder and the spokesperson of the band, for the band Lal. And many of you might have heard about the band. He's also the author of the award-winning book, The Class Structure of Pakistan, and he's a public intellectual whose lectures on philosophy and politics are widely watched on social media. So thank you very much, Dr. Taimur, for joining us. Then we have Mr. Ammar Beg. Mr. Ammar Beg is a singer, musician, also son of a legendary vocalist. I won't name him first because otherwise you'll get biased. So I'll first introduce you. Ammar Beg completed his graduation in IT from the US, and then he moved back to Pakistan recently to pursue his career in singing, music, and production. So we'll talk with him on this aspect also. Then, of course, we have Mr. Yusuf Kerai. Some of you might already be knowing him since he did a brilliant lecture yesterday. So I'm told, I was not there. Mr. Yusuf Kerai is basically a senior lecturer at Habib University, Karachi. He teaches courses in mathematics and music, what a combo, and including a course that explores the connection between the two domains. He holds a Bachelor's of Arts in Mathematics and a Master of Arts in Teaching in Mathematics. From US, also is a celebrated tabla player and founder of the group Tarz. I don't know, some of you might have known about the group Tarz. Actually, he's doing a great job. He is now the founder of the Center for South Asian Music at the university, and he's now teaching students with a panel of other teachers, and they are now offering a minor course there, which is probably very, it's very few universities probably are offering that, if I'm not wrong. So that's a contribution which Mr. Yusuf Kerai is heading there. Okay, so now let's come to, because we have limited time, let's come to our topic. I'll start off with Dr. Taimur. While we were discussing outside and before the session started, we're talking about the connect of music and culture, but before defining that, what exactly is culture? And how does music, let me put it this way, how did music affect personalities or make personalities, and then the personalities form a culture, and how does it go on? How do you see it? बहुत शुक्रिया सलमान साहब, जब आपने ये कहा कि वी हैव एन एबल एंड डाइवर्स पैनल, तो मेरे जहन से ये बात आ रही थी कि एबल पैनल तो यहाँ बैठा है, मैं डाइवर्स हूँ, क्योंकि इस पैनल पे बैठना और डिसेबल लेवल पे होना, तो इसका मतलब यही है कि डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आ गया हूँ. तो इसीलिए क्योंकि आई एम सफरिंग फ्रॉम अ acute sense of inferiority complex on this incredible panel, I thought I would make a small presentation and be as prepared as possible. So if I could just ask the audio-visual people to play the presentation. Aji, play kar dein please. Here we go. So what is culture, Salman साहब आपने पूछा. मैं छोटे मुख्तसर आपको अपना नुक्ता नज़र आपके सामने रखूँगा कि मैं उसको कहता हूँ the imagination and revolt. Next slide please. कुछ लोग मुझे ये मेरी अपनी तस्वीर है जी, जब कुछ ज़रा बेहतर दिन हुआ करते थे. आगे प्लीज़, नेक्स्ट स्लाइड. थैंक यू. तो पहला सवाल आपसे ये मैं पूछता हूँ कि आज से सलमान साहब 60,000 साल पहले कि ये कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फ्लूट्स. 40,000 और 60,000 साल पहले का मतलब ये है कि ये निएंडरथल मैन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं. निएंडरथल मैन के बारे में स्टीरियोटाइप ये है कि वो बहुत ही जाहिल था, बेवकूफ़ था, मॉन्स्ट्रस था, एंड सो ऑन. चाहे वो था या नहीं था, मगर वो जो ज़माना था
उसके बारे में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो बड़ा ब्रूटल किस्म का ज़माना था। भेड़िए आपको आके खा जाएं, डिजीज़ आपको आके ले जाए, लाइफ वॉज एज हॉब्स वुड हैव डिस्क्राइब्ड इट नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। तो इतने पुराने, कदीम और मुश्किल ज़माने के अंदर मैं आपसे सवाल ये पूछता हूँ कि लोग बांसुरी क्यों बजा रहे थे बैठ के? ये हड्डियों की बांसुरी उन्होंने बनाई हुई थी। और गौरतलब बात यह है कि हम बड़ा एम्फसाइज करते हैं, बच्चों को कहते हैं यार लिखना सीखो, पढ़ना सीखो, बट दिस is something that was invented thousands of years before writing. Writing was invented 5,500 years ago. बच्चों से हम कहते हैं लिखना सीखो, लिखना सीखो. Music was invented 60,000 years ago. Imagine Wow. that. Imagine that. So there's something about music which transcends time altogether. Next slide, please. There's something about art in general that transcends that. Zara agli slide kar dein, please. रोम अगर हैं तो ज़रा क्लिक कर दें प्लीज़, थैंक यू। तो थोड़ा सा साइकोलॉजी ऑफ द माइंड में जाते हैं, अगरचे ये मेरी फील्ड नहीं है। वो ये है कि मेरे हिसाब में, पहले मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता था, हमें बताते थे कि सब यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन करते हैं, मगर मैंने सोचा ऐसा तो नहीं है। मैंने ज़िंदगी में देखा है, मुझे ऐसे महसूस हुआ दैट मेमोरी इज़ एंड कॉग्निशन इज़ एक्चुअली एक्टिवेटेड बाय इमोशन, both in terms of what you recall as well as in terms of what is preserved. If you close your eyes and think about your earliest memories, तो आपको वो चीज़ें याद आएंगी जिसका आपके ऊपर सबसे बड़ा इमोशनल इम्पैक्ट हुआ। वो चीज़ें याद नहीं आएंगी जिसका कोई इमोशनल इम्पैक्ट नहीं था। सो वी आर नॉट कंप्यूटर्स, इंसान कंप्यूटर नहीं है। इनफैक्ट वी थिंक थ्रू आवर इमोशंस। इसको इस तरह से समझिए कि जिस तरह आपके जहन के अंदर बहुत सारे न्यूरो पाथवेज हैं that are like channels of water, और जहाँ जहाँ से पानी बहता है सलमान साहब, वहाँ से वो चैनल जो है गहरा होना शुरू हो जाता है। So there are like grooves in our minds, and if you look at some of the rational choice theory etc, तो हम डिस्कवर ये करते हैं कि in fact human beings don't act rationally. It's an effort to act rationally. Most of the time we are quite irrational. I'm not making any, sort of, I'm not saying anything about Pakistan today or about politics, etc. This is a general statement about human history. आगे चलते हैं. Please, next slide, please. Thank you. So what is art? What is culture? आपने ये सवाल बिल्कुल, पूछा. art and culture go together. Exactly. तो कुछ लोगों ने शायद बाइबल मुकद्दस को देखा हो, जिसमें, और कुरान मजीद को तो सब नहीं देखा होगा, तो कुरान में लिखा है गॉड इज द क्रिएटर, नॉट ए क्रिएटर बट द क्रिएटर। और साथ ही जुडियो क्रिश्चियन इस्लामिक ट्रेडिशन में कहा जाता है दैट मैन इज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। इफ गॉड इज नथिंग अदर देन द मैनिफेस्टेशन ऑफ द वर्च्यूज ऑफ मैन, ये फ्योरबाख का थीसिस था, then humanity defines its own essence in relation to its own creative capacity. बड़े मोटे मोटे लफ्ज़ हैं, मगर आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है, if God is the creator, and then what defines us is to be a creator, to have the capacity and ability to create. This creative capacity is perhaps what Socrates referred to within us as the divine spark. When he says man has the divine spark, what is the divine spark? What makes us human is our creative capacity. It's the ability to purposefully create that defines the human essence. The purpose of art, therefore, is not utilitarian. इसका मकसद ये नहीं है कि मैं किसी जानवर को हंट कर लूँ, या मैं किसी ब्रिज को क्रॉस कर लूँ, या मुझे कोई उसमें से फौरी माली मुफाद मिले, बल्कि it is the exercise and development that defines the human essence. ये देखिए, ये केव पेंटिंग्स हैं, ये 40,000 साल पुरानी है, 40,000 साल पुरानी। वहाँ पे वो हाथ के आपको निशान नज़र आ रहे हैं। आज तो हम सेल्फी खींचते हैं, कहते हैं ओ मेरी सलमान और यूसुफ कराई और अमार के साथ मुलाकात हुई। उस ज़माने में सेल्फीज तो थी नहीं, तो किसी ने अपना हाथ यूँ रखा और उस पर ब्लो किया और उसके हाथ का इम्प्रिंट वहाँ आया। जब मैं इस तस्वीर को देखता हूँ, I reach back 42,000 years to that person. I can look at their hand. I can almost feel that I am part and connected to them. They are connected to me. Next slide, please. So देखिए ना सलमान साहब, वो इतनी urge है उसकी to create. So finally, what is culture? What is art? I define it as the revolt against the real. इससे मेरी मुराद ये है कि हेगल ने एक दफ़ा कहा था the rational is real and the real is rational.
हम इसकी तफसील में नहीं जाते क्योंकि बड़ा लंबी बात हो जाएगी, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि रियल वो है जो एग्जिस्ट करता है। आप उसको आसान ज़बानों में कह लें द स्टेटस को, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। आप रियल हैं, आप बैठे हुए हैं यहाँ पे। सो अगर मैंने इस समाज को तब्दील करना है, बेहतर करना है, तो मैंने उस चीज़ को इमेजिन करना है जो रियल नहीं है बल्कि जो आगे होने जा रही है। यानी मैंने उस चीज़ का तसव्वुर पैदा करना है और आप तक कम्युनिकेट करना है जो है नहीं मगर होनी चाहिए। सो इसका मतलब ये है कि इफ़ एवरी न्यू आइडिया डेवलप्स इन कॉन्ट्रडिक्शन टू दैट विच एग्जिस्ट, जो है वो तो है, जो नहीं है वो मैंने आपके सामने रखना है ना अपनी आर्ट में। क्रिएट का मतलब ही ये है कि जो चीज़ नहीं है उसको पैदा करना है। So that means this new in turn is the unmentionable dialectical opposite against which the real is always also in opposition. जो हकीकत है, जो रियलिटी है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, वो हमेशा उस इमेजिनेशन के खिलाफ भी लड़ रहा है। वो कह रहा है क्यों तुम एक नई चीज़ बना रहे हो, क्यों तुम नए समाज का तस्वर दे रहे हो, क्यों तुम ये कह रहे हो कि औरत और मर्द जो है वो भी बराबर हो सकते हैं, क्यों तुम ये कह रहे हो कि मजदूर और अमीर और गरीब जो है वो सब स्कूल जा सकते हैं, पढ़ाई हासिल कर सकते हैं, सब बराबर हो सकते हैं, सब इंसान को तस्वर किए जाने चाहिए, सब बराबर होने चाहिए इन द आइज ऑफ द लॉ, सबको वोट का और एक हर बंदे को एक वोट का हक होना चाहिए। ये सब वो चीज़ें थीं जब ये कि नस्ल की बुनियाद पे, रंग की बुनियाद पे किसी के दरमियान तफरीक ना हो, मज़हब की बुनियाद पे इम्तियाजी सलूक ना हो, कौम की बुनियाद पे इम्तियाजी सलूक ना हो, ये सब जब हम बातें कहते हैं तो हमें पता है कि रियलिटी ये नहीं है। हम रियलिटी के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे होते हैं और रियलिटी हमारे खिलाफ रिवोल्ट कर रही थी। कहते हैं ये तो सब आइडियलिस्टिक किस्म की बातें हैं, ये तो सब यूटोपियन बातें, ये तो सब ख्याली पुलाव है, ये तो सब इमेजिनेशन है। मैं कहता हूँ इमेजिनेशन है। दैट इज व्हाट आर्ट इज, टू इमेजिन समथिंग दैट डजंट एग्जिस्ट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दैट इज व्हाट क्रिएशन इज, टू इमेजिन दैट व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट। So that is why. Sorry, can I add here? One last अच्छा, sorry. sentence. नहीं, मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूँ जी, इसमें, जी। आप ही की बात को बढ़ा रहा हूँ। रॉबर्ट शूमन जो ग्रेट जर्मन पियानिस्ट एंड कंपोजर, आपने कहा ना कि आर्ट क्रिएट करने का नाम है, राइट, आई एग्री। तो उसने कहा था ये तो बड़ा आसान काम है, क्रिएटिंग म्यूजिक इज़ वेरी ईजी, ऑल यू नीड टू डू इज थिंक ऑफ अ ट्यून विच नोबडी एल्स हैज थॉट अबाउट, Yes, there it is. दैट ईजी इट इज। चलो सॉरी, Beautifully मुझे said. याद आ गया। And so art, to conclude, therefore, ladies and gentlemen, is the imagination in revolt. In revolt against what? In revolt against reality, existence, that which already exists. Art, therefore, shapes history. Culture, therefore, shapes history by redefining for us what is possible, the realm of the possible, expands our horizon, expands our imagination, expands our mind, and tells us that another world, a new world, a tomorrow, a better tomorrow is possible. To therefore destroy art, to destroy music, to ban art, to ban music, is in fact to ban the imagination and to ensure that that which makes us human will be eliminated. Thank you so much. थैंक यू सो मच। वाह वाह, मुझे नहीं पता था आप इतने अच्छे मुकर्रर भी हैं। ये भी एक आर्ट है, यू नो, बोल मतलब थॉट्स होना और चीज़ है, थॉट्स को प्रेजेंट करना और फिर वाह, थैंक यू सो मच। अच्छा, पिकिंग अप फ्रॉम देयर, अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। अमार, प्लेटो ने कहा था, लिखा था कि आई वुड वांट टू टीच चिल्ड्रन म्यूज़िक, फिज़िक्स एंड साइकोलॉजी, तीन डाइवर्स चीज़ें। बट उसने कहा था बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली म्यूज़िक। वाई? बिकॉज फॉर द पैटर्न्स इन म्यूज़िक एंड ऑल द आर्ट्स आर द कीज टू लर्निंग। अब ये प्लेटो ने बहुत पहले कहा था। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप यूएस गए आईटी की डिग्री लेने, आपने ज़ाहिर है मेहनत की, उसमें अपनी बैचलर्स की, उसके बाद बाई चॉइस यू सेड ओके फाइन, आई गॉट माई डिग्री, नाउ आई एम कमिंग बैक टू पाकिस्तान, आई वांट टू परस्यू अ करियर इन म्यूजिक, इन composition, in singing. What made you do that? Thank you so much for having me here, by the way. I feel really privileged to be having able to sit with you guys. और Mr. Tamoor ने जितना बोला, इतना अच्छा बोला. And sir, thank you so much for having me here. Number one. Number two, I went to the States, and I always wanted to thrive for a higher education. But मेरे साथ मेरी life में एक चीज़ was always with me. And I think you have to born with it. You can't just develop
a talent, which was music. और पहले मिस्टर आपने जिक्र नहीं किया, I happen to be the son of Mr. मैंने कहा Waris था- Beg. मैंने He's कहा था आप खुद बताएंगे, पहले से बता के बायस आ जाता है. So I actually grew up in a very musical environment in my house, and my father, when he was growing up, my grandfather didn't allow him to do music because at that time it wasn't taken as a prestigious occupation. But उनके अंदर एक driving force थी जिसकी वजह से वो रुके नहीं, and उन्होंने मुझे फिर आगे इस चीज़ में promote किया to do more music. It helped me in each and every aspect of my life. When I was in the States, I was alone. When I didn't have anything to do, 6 to 7 hours of music, jamming, working on my own craft, helped me avoid all the things that youth, या जो normally लोग करते हैं. So music has always been there with me at my side, and it helped me grow and become a person I am today. It calmed me down. And it depends on what type of music you're listening to, और आप किस तरह की music को cater कर रहे हैं, कौन से type of music को आप सुन रहे हैं. So the music that I was listening to, absorbing, through my father जो मुझे मिल रहा था, it only made me a stronger person, and it helped me with my decision making. It calms you down, or I think it has a really important aspect, importance in anyone's personality. I was just studying about something. It said that when you learn music, जब आप music सीख रहे होते हो, तो a brain has left and right hemispheres. Both hemispheres of your brain start to work together when you're working on music, when you're learning music, and which only enhances your abilities. So I graduated in IT. स्ट्रेस रिलीजर है, बिल्कुल बहुत बिल्कुल बड़ा। स्ट्रेस रिलीजर है. मेरे लिए तो आज तक है. मैं सारे काम और मैंने तो माइंडेड बहुत पहले शुरू किया था म्यूज़िक, जब बहुत ज़्यादा टैबू था. तो उस वक्त ठीक है, पढ़ाई अपनी जगह साथ साथ थी. एंड एट द टाइम व्हेन आई वेंट टू IBA, उस वक्त तो बहुत बड़ा मिथ था कि आप IBA में आ गए, आप दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते आप, बिकॉज बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई. बट वी कंटिन्यूड विद आवर बैंड देयर एंड देन कमिंग आउट टू म्यूज़िक. तो उसमें वो जो स्ट्रेस रिलीजिंग फैक्टर है वो उस वक्त भी था, वो आज भी है. आज भी मैं कंपनी चलाता हूँ 10 घंटे 8 घंटे वटेवर काम करने के बाद, आज भी मेरा रूटीन है कि मैं शाम में रात में जाकर अपने बेसमेंट स्टूडियो में हेडफोन लगा के सुनता हूँ सिर्फ. एंड इट रिफ्रेशेस मी ऑल ओवर. आपके साथ So, adding to your point, sir, when I actually went to high school for 1 year, and America में in some institutions it's compulsory to have a music instrument, or I was in the high school choir myself. It's compulsory to have an instrument आपकी life के अंदर, जो आप बचपन में middle school में elementary school में वहाँ पे बच्चों को सिखाना शुरू कर देते हैं. So when you do that, it helps you making आपकी life में आगे जाके decision making अच्छी होती है. You've seen when people play piano, दोनों हाथ आपके काम कर रहे होते हैं. Even when I play guitar, I'm a right-handed guitarist. ओके. I don't have command on my left hand, but naturally, because of my practice, I can do so many crazy things with my left hand. Of course, you can relate to. Are you to a, that are as you a well. lefty guitarist? I'm a left-hand guitarist. Jimi Yeah. Hendrix. Yes. Okay. So you can do so many wonders. And coming back to what I was saying, I think it's really important for school systems in Pakistan. Basically, the reason why we're having this discussion is because we are able to learn out of this discussion. So I really would want to promote and talk about having an instrument or music as a core subject in schooling system in Pakistan is going to be really important, because I see youth, they're doing so many crazy things and they don't have anything to do. The extracurricular activities यहाँ पे नहीं है. And when I was growing up and I was doing music and learning guitar, I would practice for 6-7 hours a day, and my parents wouldn't stop me because लगा हुआ है बच्चा अपने काम में लगा हुआ है. So it helped me so much. I didn't have any crazy things to do when I was growing up. So the point is,
I personally, when I was growing up and I did music, it helped me from so many other things जो एक youth को problem मिलती है, face करनी पड़ती है. So music helped me out of it. मेरा हमेशा किसी भी फोरम पे whenever I talk or whenever I have a discussion, ख़ास तौर पर वो फोरम जहाँ पेरेंट्स मौजूद हों, बिकॉज आई गो टू a lot of children's competitions etc etc, और वहाँ अगर पेरेंट्स बैठे हों तो मैं उनसे रिक्वेस्ट एक करता हूँ, जो शायद आप लोग भी एज टीचर्स यहाँ कुछ बैठे होंगे वो पास ऑन करें, कि यू नो एनी आर्ट इज़ अ गॉड गिफ्टेड टैलेंट. अल्लाह ताला ने करोड़ों में से चुन कर आपको एक आर्ट दिया. अब आप उसको चाहे प्रोफेशनली फ्यूचर में टारगेट करें या ना करें, एटलीस्ट नर्चर दैट आर्ट इन द चाइल्ड. हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि वो बचपन में या तो ये कह के कि बच्चा बिगड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा. बिगड़ कैसे जाएगा? दिस इज़ व्हाट पेरेंटिंग इज़ ऑल अबाउट. आप बच्चे को इससे भी तो रोकते हैं कितने घंटे टीवी देखना है, कितने घंटे कंप्यूटर पे जाना है, कितने घंटे बाहर खेलने जाना है. तो इसको भी रोक लें, इसको भी मतलब मॉनिटर करें. दैट्स व्हाट पेरेंट. बच्चे को तो नहीं पता, 2 3 4 साल का बच्चा, उसको क्या पता है, उसने तो खेलना भी है, उसको आप मॉनिटर करें. बट खुदारा उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट है वो, उसमें से वो पार्ट ना निकाले, उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी. वो उसको परसू करे प्रोफेशनली, ना करे, दैट्स योर चॉइस, दैट्स हिज चॉइस. बट एक अल्लाह ताला का गिफ्ट है कोई भी आर्ट, एक अल्लाह ताला का गिफ्ट है, उसने आपको चूज़ करके दिया है, उसको नर्चर करें, उसकी पर्सनैलिटी को उसके गिर्द डेवलप होने दें. तो ये मेरा हमेशा मैसेज होता है, आज भी इस मैसेज को मैं दे रहा हूँ. मे बी ये पास ऑन हो किसी तरह आगे. सो नाउ हैविंग सेड दैट, लेट मी कम टू यूसुफ किराई. यूसुफ, आप तो एक्टिवली काम कर रहे हैं इसके अंदर, मगर अभी उस काम से हट के पहले तो ये बताएं, जब हम बात करते हैं ना कि म्यूज़िक एक कल्चर को भी डिपेक्ट कर रहा होता है किसी ना किसी फॉर्म में, हाउ डज म्यूज़िक रिलेट विद योर कल्चर? पहले तो शायद एक फ़र्क करना पड़ेगा कल्चर को और ट्रेडिशन को, क्योंकि ट्रेडिशन का जो लफ्ज़ है ये बरतानवी हुकूमत में बहुत सारी हमारी जो कल्चरल एक्टिविटी थी उसको ट्रेडिशनल करार दिया गया और उसको शायद एक नीची नज़र से भी देखा गया कि ये इसमें इमेजिनेशन नहीं है या सोच नहीं है. सो अल्फ्रेड नॉर्थ वाइटहेड ने एक रिसाले में ज़िक्र ये किया था कि कल्चर इज़ एक्टिविटी ऑफ थॉट. और ये बात म्यूज़िक के हवाले से, और मैं ज़्यादा बात करूँगा जनूबी एशिया की म्यूज़िक के हवाले से, क्योंकि उसी में मेरा उभूर है. राइट. तो हमारी मौसीकी जो है वो है ही सोच का काम, और इसमें इतना डेवलपमेंट हुआ है इस रीजन में. शायद साइंस और टेक्नोलॉजी वगैरह, मैथमेटिक्स और बाकी इल्म में तो हुआ है काफ़ी काम, लेकिन मौसीकी में जितना काम हुआ है शायद ही किसी और डिसिप्लिन में हुआ हो. हज़ारों साल से ये रिफ़ाइन होता चला आया है, और मुख्तलिफ़ कल्चर्स की चीज़ें, जितने भी कल्चर्स आके इन्वेड करके गए हैं इस हिंदुस्तान के रीजन को, उन सब की चीज़ें इसमें एब्ज़ॉर्ब हुई हैं. ठीक है, अब उसको एब्ज़ॉर्ब करना और उसमें से एक नई चीज़ बनाना, और ये चीज़ क्या है? देखिए, म्यूज़िक इतनी पावरफुल चीज़ क्यों है? क्योंकि वो ना कोई देख सकता है, ना उसे छू सकता है, ठीक है, लेकिन उसका असर आप पे जो तारी हो जाता है वो बहुत बड़ा है. इसी वजह से इसीलिए कहते हैं म्यूजिक इज सच अ थिंग व्हेन इट हिट्स यू यू डोंट फील द पेन. एग्जैक्टली. ओके प्लीज. तो म्यूज़िक इस वजह से साउथ एशिया में कहते हैं ना कि सुर ईश्वर है. क्यों? क्योंकि ईश्वर को भी किसी ने नहीं देखा, और ना ही उसे महसूस करने का तरीका है. वो बहुत सारे आपको चीज़ें करनी पड़ती हैं उसको महसूस करने. ये कानों के ज़रिए म्यूज़िक आपके पास पहुंच जाता है. अब हमारी मौसीकी में जब सोच की बात आती है तो इस रीजन में सिर्फ पाकिस्तान को भी देख लें या हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे रीजन को देख लें
कितनी ज़बानें हैं, मुख्तलिफ कितने कल्चर्स हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ बैठे हुए और बंगाल तक जब आप राग यमन की बात करेंगे या तीन ताल की बात करेंगे या किसी, ये एक कॉमन सोच है पूरे बेल्ट में। और ये कैसी बड़ी बात है कि जहाँ पे ज़बानें मुख्तलिफ है, आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे और आपको समझ में नहीं आएगी क्या कहा जा रहा है, लेकिन एक ऐसी ज़बान, म्यूज़िक की ज़बान, वो एक जैसी है। अब उसमें ये कैसे हुआ? क्योंकि इसमें एक सोच ऐसी थी विच वॉज बियॉन्ड जस्ट लैंग्वेज। अगर मैं आपसे कहूँ घड़ान धा घड़नक धी घड़नक ता कट तक तक तिंग नक तिकट तक तिंग नक तिकट नक तिकट धक जग धा घड़नक धक नक घड़ान धा घड़नक धी घड़नक, अब आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन आपको लगा कि मैंने आपसे कोई बात की, क्योंकि इस बोली में गुफ्तगू है। अच्छा, ये गुफ्तगू का एक रिश्ता है सारी ज़बानों से, जितनी भी जनूबी एशिया की ज़बानें हैं उनका एक रिश्ता है इस ज़बान से, जो है मौसीकी की ज़बान। जैसे सुरों में है नी रे गा रे नी दा नी रे गा रे सा, अब नी देखिए रे इन्होंने गा सुर के दा नाम, नी दा सा नी दा प म गा रे नी दा नी रे रे गा रे नी दा नी रे गा रे सा। क्या बात। ये जी राग यमन का इन्होंने जिक्र किया था कि यमन की अब के सुर इन्होंने है। ये गाया, और अगर इल्म मौसीकी किसी को कोई जानता है, जिसने सुना है, ये इन सुरों को पहचान जाएंगे, वो कहेंगे राग यमन की चाल चल रहे हैं। अच्छा, सुर देखें, सुर भी कैसी चीज़ है कि 12 सुर, 7 सुरों के सिर्फ नाम हैं 12 सुर हर किस्म की मौसीकी में, दुनिया की मौसीकी में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जब कल्चर की बात की जाए कि जनूबी एशिया में मौसीकी की सोच क्या थी, तो उसमें उनका इस्तेमाल करने का अंदाज़, बिल्कुल वो आपको बतलाएगा कि ये यहाँ की चीज़ है। अब इन्होंने कहा नी रे गा रे नी रे सा, अब ये कह सकते थे नी रे गा रे नी रे सा, लेकिन इन्होंने वो टूल्स यूज़ किए जो हमारी मौसीकी में, जिसके ऊपर सोच का काम किया गया। बुज़ुर्गों ने इसको देखा, इसमें एक और ज़िंदगी पैदा की खुद, कि ये एक ऐसी चीज़ बन सके कि आप इसके ऊपर कुछ अल्फाज डालेंगे, वो अल्फाज आप तक ऐसे पहुँचेंगे जो सिर्फ लफ्ज़ों से आप नहीं बयां कर सकते। जैसे सॉरी कि- यूसुफ, मैं एक जी, चीज़ यहाँ ऐड कर दूँ। जी, जो एक कल्चर्स के साथ यही सुर तो वही यूनिवर्सल है। वो वेस्टर्न के अंदर उसको वो ABCDEFG कहें या डोरे मी फा सोला, जो मर्ज़ी कहें, उसको सुर तो वही है। बट सुर का जो स्टाइल है लगाने का या उनका जो कॉम्बो है, वो डिटरमिन करता है वो किस कल्चर से आ रहा है। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। da 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 dee da 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 dee da da. It looks very Chinese, doesn't it? Da 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 dee da 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 dee da. ठीक है? La re no no re no de da de. राग भोपाली। ये राग भोपाली है। सुर वही है बिल्कुल, उनका ट्रीटमेंट फ़र्क है। दिस इज़ हाउ यू नो इट कैन रिफ्लेक्ट अ कल्चर। आगे प्लीज़। सॉरी। अब ये जो इन्होंने जिस तरह से इन सुरों को निभाया, अब इसमें बहुत सारी हमारी ऑर्नामेंट्स हैं जिससे हम सुरों को पिरोते हैं। अब मैं आपको एक्चुअली म्यूज़िक की सोच के बाद, आप लिंक्स टू कल्चर की जब आप बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि द एक्टिविटी ऑफ थॉट हमारे इस जनूबी एशिया में क्या है। नी रे मीन्ड स्लाइडिंग बिटवीन नोट्स, गा रे खटका, एक नोट पे एक जर्क देना, गा रे नी द नी रे गा रे नी रे, ये क्या था? मुर्खी, क्लस्टर ऑफ नोट्स, रे सा नी मदनी रे नी। अब ये लगाने के अंदाज़, जब आपको पता होगा कि आप क्या ऑर्नामेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे फिर आप
अल्फाज को लेकर के धुन आसानी से बना सकेंगे। एक तो सुरों की चॉइस, अब मैंने आपको कहा था कि 12 सुर हैं, उसमें से अगर आप 7 सुर भी लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा हिसाब किताब आ जाता है, उसके कितने मुख्तलिफ तरीके हैं चाल बनाने के, Presentation. और कितनी चालें बन सकती हैं। कुछ 200 से ज़्यादा तो रागों का तो जिक्र है लिखे हुए। ये चालों का नाम ही हम राग कहते हैं। इन्होंने ये गाया नी रे गा रे नी रे सा नी रे गा मा पा रे गा पा मा धा पा रे। आपको कुछ याद आया? पा मा धा पा रे गा रे सा नी रे गा मा पा रे गा। सलमान साहब गा के बताएंगे कि ये किसका जिक्र हो रहा है। बहुत सारी, ये जब एमन की बात करते हैं, जो हम सुर गुनगुना रहे हैं, इसमें आपने एमन में बहुत कुछ सुना है जो आज तक मशहूर है। रंजिशी सही, ये एमन है। दिल ही दुखाने के लिए अब ये सुरों का लगाव का फ़र्क है। मैं अगर किसी और चीज़ अगर कोई गाना ले लूँ, फिल्मी गाना ले लूँ, वो भी फिल्मी गाने भी राग एमन के अंदर आपने बहुत सारे सुने होंगे। पापा माँ गरेगा गाइए। सा सा नी धा पा मा रे सा नी रे रे गा मा गा रे मा गाइए। सा सा नी धा पा रे गा रे सा अकेले ना। ये बात ये एमन है सारा। मैंने उसको सुरों में गाया, डर गए लोग, नीरे गा रे नीरे सा। अब वो डरने की बात थोड़ी है, इसमें वो सुरों के नाम है। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे बात आई कि जो मौसीकार का काम है, ठीक है, वो अल्फाज, वो शायरी को लेकर के आप तक पहुँचाया एक गाने की शक्ल में, लेकिन ये जो सुर थे, ये जो चालें थी, इनमें एक ज़िंदगी थी खुद। और अगर आप जिसको हम क्लासिकल का नाम देते हैं, वो भी एक बहुत गलत नाम दिया गया है मौसीकी के लिए। ये भी बरतानवी हुकूमत की वजह से हमने अपनी बहुत ही खूबसूरत मौसीकी को, जो शायद आम लोगों के समझ में ना आए, उसको क्लासिकल का नाम दे दिया। लेकिन ये है नहीं क्लासिकल, इसमें सोच ही सोच है। और उस सोच की वजह से आप तक इतनी गज़लें, गाने, गीत पहुंच सके, क्योंकि किसी ने अब तसव्वुर तो नहीं कह सकता क्योंकि वो विजुअल चीज़ हो जाती है, किसी ने इसको सोचा, इन सुरों के साथ एक्सपेरिमेंटेशन की, इन सुरों से आशनाई इतनी हुई। हम क्यों कहते हैं कि बहुत रियाज़ करना ज़रूरी है म्यूज़िक को अगर सीरियसली करना है। Absolutely. और अगर आप अच्छी तरह से म्यूज़िक का रियाज़ करेंगे, आप शायद भूल भी जाएंगे रोटी कपड़ा मकान क्योंकि नहीं रहता एक यार, और बिल्कुल दुनिया, एक और ज़िंदगी आपके सामने आ जाएगी जिसमें आपने अपना वक्त उसमें वक्फ करना है। तो कल्चर की जब हम बात करते हैं, तो सारी जितनी भी डाइवर्सिटी है जनूबी एशिया की, उसको मौसीकी ने इस तरह से पिरोया है कि अभी मैंने कुछ ऑर्नामेंट्स की बात की, कुछ अंदाज़ हैं सुरों को लगाने के, कुछ अंदाज़ हैं ताल की गुफ्तगू करने के, कुछ अंदाज़ हैं गिनने के। ये सारी चीज़ें, ये सोच का काम जो है, इसी की वजह से आप अपने साथ वाले की सोच और सलाहियत समझ सकेंगे अगर आपको उनकी ज़बान भी नहीं आती। ठीक है, बिल्कुल। मैं ज़रा अमार की तरफ आऊँगा। ये जो सुर हम लगा रहे थे ना, ये तो बड़े ज़रा ईस्टर्न रंग में ढले हुए थे। इन्हीं सुरों का इस्तेमाल वेस्टर्न म्यूज़िक ने भी किया है। डॉक्टर तैमूर भी बैठे हुए हैं, इन्होंने भी बड़ा अपने बैंड में वेस्टर्न स्टाइल को अपनाया ज़रूर, बट उसमें वो सारा ईस्टर्न मवाद ठूस नहीं दिया, उसका कॉम्बो बनाया। यू नो, समवन सेड, अ म्यूजिशियन सेड के इमेजिन इफ द म्यूजिक वाज द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, इमेजिन अ 20 बिलियन पार्ट सिम्फनी। Wow. वाओ, दैट्स द इमेजिनेशन। यू नो, बिकॉज हर एक की सोच डिफरेंट होगी, तो वो उस इतने पार्ट मिलके अगर एक सिम्फनी या एक हारमोनी बनाएंगे तो वो कैसी म्यूज़िक बनेगी। तो ऐसा नहीं है सुर वही, वो सुर मतलब, अब मैं वो बात ज़रा दूसरी तरफ चली जाएगी, वरना मैं मिसालें ये देता कि वेस्टर्न के अंदर इन्हीं सुरों को कैसे इस्तेमाल किया।
है सारा लगाने का फ़र्क है। तो आप भी तो म्यूज़िक करते हैं, आप भी तो म्यूज़िक करते हैं, आपने कभी ये देखा कि कॉन्शियसली कि आप दोनों को कॉम्बो बना रहे हैं, या आपने वही वेस्टर्न फॉलो करना है, या वेस्टर्न अंदाज रखना है और एक कोई मिक्सचर बनाना है? I personally, when I'm doing music, जब मैं कर रहा होता हूँ तो अगर मैं कोई पाकिस्तानी गाना गा रहा हूँ या कोई सब कॉन्टिनेंटल गाना गा रहा हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसमें वही एस्पेक्ट रखूँ. And I've done a few covers of like you were talking about Rageman. Nire ga pare nire sa तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें जी। जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम. So you should be able to show your. Thank you. ये आपने वालिद साहब स्टाइल की वही खुशबू। रखा है, आपने स्टाइल, मैं कह रहा हूँ इसको आपने बैंड के साथ गाना है, आप गाएं इसको थोड़ा सा डिफरेंटली करके, क्योंकि ये तो स्टाइल वही है, बिल्कुल। आपने मुर्की भी लगाई है इसके अंदर, ठीक है ना? So basically, like when I'm personally doing music, I was really inspired by Western music. सारा कुछ, I've grown up listening to Bruno Mars, and I don't incorporate classical with Western because I personally feel it doesn't go together. But उसको present करने का या उसको show करने का same तरीका है. For instance, अगर कोई आप Western song ले लें, same bed but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh, ooh. So they use more falsettos Right. and stuff like that. देखें, आपने गौर किया होगा कि इसमें सुर तो वही है ना, उन्हीं के गिर्द घूमेंगे हम, मगर इसमें जो लगाना सुरों का था वो डिफरेंट था, विच मेड इट मोर वेस्टर्न. सिमिलरली जो फ़र्क यूसुफ बताने की एक और कोशिश कर रहे थे वो ये भी था कि वेस्टर्न में भी ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं है, उधर भी अगर आप कहते हैं कि जी ए मेजर का स्केल, तो सबको पता है ए मेजर के स्केल में कौन से नोट लगेंगे, ए सी शार्प ई लगेगा, और दुनिया में आप जाके किसी म्यूजिशियन को कहेंगे ए मेजर का स्केल बजाओ तो वो एक ही हमारा म्यूज़िक मुश्किल इसलिए हो जाता है कि हमारा परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन चेंज होने से राग चेंज हो जाता है, सुर वही हैं मैं अब अगर क्योंकि अगेन बात दूसरी तरफ निकल जाएगी इसलिए मैं उधर जाना नहीं चाह रहा कि हमारा ज़्यादा मुश्किल काम है, इसलिए मुश्किल काम है कि नोट्स वही हैं, मगर उनका ज़रा सा मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चेंज करूँगा, किसी सुर पे ज़ोर ज़्यादा दे दूँगा, वो राग चेंज हो जाएगा. तो उसको याद रखना और उससे बच के चलना, ये इसलिए जो ईस्टर्न म्यूज़िक है ये थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. बट हैविंग सेड सो, कल्चरल डाइवर्सिटी में म्यूज़िक ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है लोगों को करीब लाने में, दुनिया को करीब लाने में. डॉक्टर साहब आपकी राय लूँगा इसके ऊपर कि दुनिया को करीब लाने में पहली चीज़ तो के रोल है म्यूज़िक का कि नहीं है, हो सकता है, और अगर नहीं है तो कैसे हो सकता है, बिकॉज यू आर वेरी वोकल अबाउट सर्टेन. यस आई एम आई थिंक एक तो बड़ी ज़बरदस्त कॉन्वर्सेशन आपने सुनी, मौसीकी भी सुनी, जिससे आपको अंदाज़ा हुआ कि जो हमारी शनाख्त है, साउथ एशिया की शनाख्त कह रहे हैं, बड़े सग़ीर की शनाख्त, उसकी मौसीकी की शनाख्त से वो आपको समझ आएगी क्या है. इसी तरह बहुत सारी और चीज़ सलमान साहब मिलती हैं दुनिया को जब हम देखते हैं कि जिन अफ्रीकन स्लेव्स को उठा के ले गए और प्लांटेशंस पे काम करवाया, तो उन्होंने क्रेट के डब्बों को रख के तो उन्होंने उनको बजाना शुरू कर दिया, और साथ फिर एक बड़ी दुख भरी किस्म की मौसीकी इस्तेमाल की, जिसमें हम कहते हैं ना, जिसको डिमिनिश्ड फिफ्थ कहते हैं, जो बड़ा डिसोनेंस का मतलब ये है कि वो बड़ा अजीब व गरीब किस्म का नोट है, एमन में भी इस्तेमाल होता है, इंटरवल है, वो इस्तेमाल करना शुरू किया. चर्च जो थी उसके बड़े ख़िलाफ़ थी. उसमें से देखें एक पूरा ट्रेडिशन निकला जिसको हम ब्लूज़ म्यूज़िक कहते हैं, क्योंकि इट साउंड सो सैड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटरवल. इसी तरह हम देखें कि जमैका के अंदर जो स्लेवरी थी और रेसिज्म था और कलोनियलिज्म का जो पूरा इन्फ्लुएंस था, तो उसके ख़िलाफ़ बॉब मार्ले का म्यूज़िक जो फर्स्ट थर्ड वर्ल्ड सुपरस्टार बना,
उसका एक बड़ा ग्लोबल इम्पैक्ट हुआ। इसी तरह हम देखते हैं कि हिंदुज़म जो हमारे साउथ एशिया के अंदर है वो तो सारा कनेक्टेड है और उसकी जो उसको जो फैलाया गया वो मौसीकी के ज़रिए फैलाया गया। फिर उसी के देखा देखी आप देखें कि जो मुस्लिम पर्शियन नॉर्थ इंडियन कल्चर बना तो उसमें से उन्होंने कवाली और पर्शियन से गज़ल वगैरह लेकर अडॉप्ट किया उस स्टाइल को। गज़ल वाज फॉर डिवोशन टू योर लवर एंड कवाली वाज फॉर डिवोशन टू द गॉड ऑलमाइटी एक्सेट्रा। सो इसी तरह हम देखते हैं कि जब 20th सेंचुरी के अंदर अजीम स्ट्रगल हुई अपार्थाइड के ख़िलाफ़ तो उसमें जो अमन डाला म्यूज़िक वगैरह पैदा हुआ, फ्री नेल्सन मंडेला सॉन्ग्स वगैरह जो क्रिएट हुए तो उससे एक बड़ी ज़बरदस्त मोबिलाइजेशन हुई। ब्लैक म्यूज़िक में देखें जो हिप हॉप की डेवलपमेंट थी, इट वाज रिलेटेड टू द गेटो एंड टू द स्ट्रीट, जो रैप की डेवलपमेंट, gang influence and all that stuff. वो भी आ गया फिर बाद में, but initially it was just a rebellion against the state. So in all these instances and so many more, the various movements जो तहरीकें तारीख में चली, हाँ बेथोवन, बाख और मोज़ार्ट की जब आप बात करते हैं, the three great classical quote unquote classical composers, although Yusuf and I don't like this term, तो वो सारे आप देखें फ्रेंच रेवोल्यूशन और एनलाइटनमेंट के साथ जुड़े हुए। बाख तो बड़ा सपोर्टर था, बेथोवन बड़ा सपोर्टर था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, उसने डरा भी दिया सबको दादा दादा करके, ठीक है ना जी। तो ऑल ऑफ दिस इज रिलेटेड वेरी इंटीमेटली टू आवर थॉट्स, टू द ब्रॉडर हिस्टोरिकल स्वीप, जिस तरह यूसुफ ने बताया। राग एमन बाय द वे मीन्स राग यमन, यमन इज यमन सिटिंग ओवर देयर, ये उन्होंने बनाया था फिर हमने चोरी कर लिया। मतलब ओरिजिन इसकी यहाँ पे, जिस तरह सिंधी भैरवी भी हम बोलते हैं एंड सो ऑन, यू नो, जिसको हार्मोनिक माइनर बोलते हैं, जो फिर स्पेनिश म्यूजिक का ऐसा बन गया, वो स्पेनियर्ड्स ने हमसे लिया था। वही बात आ जाती है कि वो रिफ्लेक्ट करता है कहीं ना कहीं जाके। मैं एक छोटी सी बात पे फिर क्वेश्चन आंसर्स पे आना है हमें। मैं अपना वो जुमला मुकम्मल कर लूं। हाँ, बोले कि एक तो ब्रॉड हिस्टोरिकल और जियोग्राफिक स्वीप है मौसीकी की, जो कि पूरे रीजन्स और पूरी सिविलाइजेशंस की हिस्टोरिकल स्वीप को डिफाइन कर रहा है, जिस तरह यूसुफ ने कहा। और एक फिर है उसके अंदर रहते हुए स्पेसिफिक मूवमेंट्स ऑफ आर्ट एंड म्यूजिक, जिन्होंने री इमेजिन किया कि दुनिया किस तरह होनी चाहिए। So these are the two levels of analysis जिसमें हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू सो मच। मैं अब क्वेश्चन आंसर पे आता हूँ, बट मैं इसको एक यूँ कंक्लूड करूँ। मैं अपने एक पर्सनल, निसार बज़मी साहब, द ग्रेट कंपोज़र ऑफ पाकिस्तान, बज़मी साहब ने मुझसे एक दफ़ा बैठ के ये बात कही थी। हम बहुत सारे म्यूज़िक से कंसर्न लोग बैठे थे। उनका बेटा याद रखना म्यूज़िक जो है ना वो बता देगा कि वहाँ किस खित्ते से आ रहा है। मैं कहा जी कैसे? कहने देखें पंजाब का म्यूज़िक, पंजाब इज़ वेरी वाइब्रेंट, यू नो, फसलें, खेत, वहाँ आपको वो नज़र आएगा जॉय पंजाब की म्यूज़िक में। सिंध की म्यूज़िक में आपको एक दूसरे तरफ का सूफियाना कल्चर नज़र आएगा। जब आप खैबर पख्तूनख्वा की म्यूज़िक पे आएंगे वहाँ उनका टेरेन नज़र आएगा, डंटा 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 डंडे डिंडे डिंडे डिंडे, ज़्यादातर आपको ये नज़र आएगा। बंगाल के म्यूज़िक पे आएंगे तो वो बहुत सॉफ्ट नज़र आएगा क्योंकि वहाँ पानी है। तो ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट है जो एक वो कंपोज़र देखता था अपनी नज़र से। चले जी, कमिंग टू क्वेश्चन, डू वी हैव सम क्वेश्चन? वी हैव अ क्वेश्चन हियर। व्हाट अपॉर्चुनिटीज आर देयर फॉर न्यू कमर्स इफ दे फील दे कैन टेक म्यूजिक एज अ करियर? Can I shine some light on that? Please. I feel like, because myself being an emerging singer, unfortunately in Pakistan we don't have too many record labels and, you know, too many things going on जो आपको promote करेंगे music पे. But if you actually have the germs inside of you and if you're really passionate about it, you yourself can be a record label. दुनिया बदल गई है अब, TikTok का, YouTube का, social media का दौर है. Me myself, I have a YouTube channel where I upload my music videos, people get to see them. So I think the prospect has been way broader now. Things have changed. If you have talent, whether you're doing construction, you're good at speaking, you're making music, or whatever it may be, I think if you actually have it and if you're passionate about it,
put it out there, and one day someone out there will see it, inshallah. यूसुफ आप तो पढ़ा रहे हैं. I think just seconding what he said, there's actually many more opportunities now than there were Before, absolutely. several years ago. In fact, Salman Saab will also attest to the fact that there were fewer record labels. You had to go through a whole process. Sometimes it was whether you had connections or not, whether you'd get an audition or not. Today, you don't need that. You can put stuff out there, and you are part of a very huge community of people that you're competing with. But I think the important question is not about career. In fact, I think जब आप करियर का सोचने लग जाते हैं, इससे पहले कि आप इल्म मौसीकी का सोचें, यहाँ मुश्किलात पैदा हो जाती हैं. ठीक है, टैलेंटेड सभी होते हैं. छोटे बच्चे को देखेंगे, जिसका भी बच्चा होगा, अगर म्यूज़िक बजेगा वो हिलेगा. परकसिव एबिलिटीज़ होंगी, कहीं धुन की एबिलिटीज़ ज़्यादा होगी तो शायद गुनगुना सकेगा. लेकिन टैलेंटेड सब होते हैं, उसको नर्चर करना है पहले. जब आपने उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी होगी, म्यूज़िक एक्सपोजर आप कहीं से भी ढूंढें, कोई उस्ताद ढूंढें, कोई किसी इदारे में जाएं. और लाहौर में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके लिए. अब भी हैं म्यूजिशियंस जो आपके घर भी आके सिखा सकेंगे, बदकिस्मती से. वैसे तो हमें जाना बेसिकली चाहिए. सीखना पहले है, सीखना पहले है, फिर करियर आएगा. अपॉर्चुनिटीज़ और करियर जो है वो, उसमें अगर आपका पैशन होगा तो आप उसके लिए काफ़ी मेहनत करेंगे, बहुत साल करेंगे. आपको अगर आर्किटेक्ट बनना है तो आप क्या आर्किटेक्चर में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आपको लगता है कि मुसव्वरी का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यही है? नहीं, आप 20 साल 30 साल काम कर लेंगे, शायद आपका नाम बने आर्किटेक्चर में. लेकिन वो 20-30 साल आपने कैसे बिताए, वो मैटर करता है. वो मैटर करेगा. वो मैटर करेगा. इसमें मैं लेट मी ऐड हियर बिकॉज आई एम अ मार्केटर बाय प्रोफेशन. आपने जो कहा ना बात, वो बिल्कुल ठीक है कि आजकल कैनवस चेंज हो गया है. आपके पास सोशल मीडिया, आपके पास दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं. बट हैविंग सेड सो, मैं ये समझता हूँ हमारे पास अब भी इस चीज़ की कमी कि ये जो म्यूजिशियंस होते हैं ना, ये बहुत टेक सेवी नहीं होते जो अच्छे होते हैं. और टेक सेवी हो भी तो आजकल ये पूरा चैलेंज है बड़े बड़े ब्रांड्स को. मैं करता हूँ उनके लिए मार्केटिंग, कि सोशल मीडिया पे खाली यूट्यूब पर डाल देने से कुछ नहीं होता भाई. उसकी एसईओ कैसे करनी है, उसको मार्केट कैसे करना है, आपके सारे चैनल्स को लिंक कैसे करना है, उस की एक कमी है. वो मैं यूसुफ से कहूँगा अपनी यूनिवर्सिटी में बनाएं कि वो म्यूजिशियंस को ये बताए कि यार बना के ले आओ, यूट्यूब पर डाल दो, उसके बाद उसको मार्केट कैसे करना है. वरना यूट्यूब पर जाके आपको 240 व्यूज़ मिलेंगे, दैट्स अबाउट इट, अनलेस यू रियली मार्केट इट. और वो उनका काम नहीं है, जो म्यूजिशियन है ना उसका काम नहीं है वो मार्केट करना. एनीवेज ये डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा. देयर इज अनदर क्वेश्चन, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर यू अमार, यू कैन रीड इट आउट. आर लिरिक्स एज इम्पॉर्टेंट एज म्यूजिक ऑफ अ सॉन्ग फॉर इट्स पॉपुलैरिटी? What are your thoughts? Absolutely, I think lyrics are as important as the melody of a song. There's so many examples that I can give. अगर lyrics meaningful नहीं होंगे तो शायद सुर इतना impact ना करेंगे आपके ऊपर. So हमारी जो communication होती है is usually through speaking, through words, and you know the way you can communicate with people is through words. तो उसको जब आप म्यूज़िक के साथ इनकॉर्पोरेट करते हो, it just music then just magic happens. I'll give you an example of my father's song, which happened to be one of his biggest hits. कल शब देखा मैंने. गुनगुना देना थोड़ा सा. ज़रूर. आप मेरे साथ क्लैप करेंगे, थोड़ा सा स्नैप करेंगे. ला रा 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 रा. घितक धिन कल शब देखा मैंने झांझरों में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में. रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, चूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में. तक धिन धिन. किसका लिखा हुआ है? किसका लिखा? सो अगर इसको मैं खाली हम करके था, अच्छा मैं इस पे ना might not be able to communicate my message that I want to
through just humming. So lyrics are really, really important Very and important, meaningful very important. lyrics. मैं सर इस पर बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, बिल्कुल ठीक है। चलें। माजरत के साथ। नहीं नहीं कोई मालूम नहीं, तो अच्छा है, पॉइंट ऑफ व्यू आया। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में जो पंजाब का सबसे पॉपुलर गीत है उसका नाम है तू तक तूतियां। मैं कुछ झूठ बोल या मुन्नी बदनाम हुई। So I think lyrics are definite. No, I'm sorry. No, you're perfectly fine. इस वक्त पाकिस्तान का सबसे फेमस सॉन्ग पसूड़ी है इस वक्त और उसके लिरिक्स सबको आते होंगे. The point is कि there's a lot in music that's going on, which is not just with respect to the lyrics. There's a lot in music going on that's going on with respect to the rhythm. Yeah. वो जो उसकी जो आगे पीछे चल रही है with the main rhythm के साथ वो जो play कर रहा है उसके ऊपर there's a lot that's going on with the melody. और मैं गारंटी करके बता सकता हूँ आपको कि अच्छे से अच्छी शायरी हो और दोनों आपकी अच्छी ना हो, या आपके पास वो ताल आप ना पकड़ सकें, तो वो गाना नहीं कामयाब होगा. गाना कामयाब होता है मेरे हिसाब में बिकॉज ऑफ द म्यूजिक एंड द लिरिक्स. टू अग्री विद अमार, एग्जैक्टली, इट्स द चेरी ऑन टॉप, इट्स द बोनस पॉइंट. Mr. Tamura, I would like to interrupt you. चलें जी, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूं. मशहूर होना या पॉपुलर होना इज डिफरेंट. उसका टाइमलेस होना दैट्स डिफरेंट. आज 50 साल पुराना गाना आपको याद है, मैं पिछले साल का सुपर हिट गाना पूछता हूँ आपसे, मुझे 4 लाइनें गुनगुना के बताएं, नहीं गुनगुना सकते. तो टाइमलेस होना अलग चीज़ है. वो जब 50-60 साल पहले गाना बना था ना, मैं फिल्मों की बात कर रहा हूँ, उसको लिखता कौन था? उसको लिखते थे जी सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब, कतील सिफाई साहब, अहमद फराज साहब, ठीक है, ये सारे बड़े शायर थे. Sir, छोटी सी आपको सॉरी मैं लेट मी कंप्लीट. आज हमारे पास उतने उस लेवल का शायर गाना लिखता ही नहीं है, क्योंकि वो बच्चा कहता है मैं खुद लिखूंगा. जो गाना बना रहा है वो कहता है मैं खुद ही म्यूजिक बनाऊंगा, खुद ही गाना भी लिखूंगा. तो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है बहुत अच्छा गाना भी लिख ले और हो सकता है कि वो तुकबंदी हो. तो चलें, मशहूर हो सकता है वो, मगर उसको टाइमलेस होना दैट वुड रिक्वायर समथिंग मोर. सिमिलरली कमिंग टू म्यूज़िक डायरेक्टर्स, हमारे पास म्यूज़िक डायरेक्टर्स कंपोजर्स जो थे, आप शुरू हो जाएं ख्वाजा खुर्शीद अनवर, रशीद अतरे साहब, निसार बज़मी, सुहेल राना, एम अशरफ, ए हमीद, आई स्टार्ट नेमिंग. एंड आज मुझे 2 नाम तो बताएं जिसको आप कहेंगे कि कंपोज़र है. मुश्किल हैं, होंगे 2-3 होंगे, 4 होंगे, उस लेवल के नहीं हैं. फिर आए हैं सिंगर्स के ऊपर. अब सिंगर्स हमारे पास बहुत हैं, बट आई थिंक, आई स्टिल फील for a song to be timeless or evergreen, you need a combo of all 3. Absolutely. To be super hit, आप बहुत ही फजूल किस्म के कोई अल्फाज ले आए, कल सुपर हिट हो जाएगा, और हुए हैं. पता नहीं वो जब तक रहेगा समोसे में आलू, पता नहीं क्या, ये पता है ना, ये गाना याद है ना आपको, ये हिट है ना. Sir, I would like to add in कितनी कॉपियां बिकी हैं इसकी. एक एक्सेप्शन, अच्छा, सलमान साहब, एक्सेप्शन जरूर करूंगा सलमान साहब. वो ये है कि कुछ चीज़ें हमारी फोक गायकी, जैसा टप्पे हैं, वो हमारी फोक गायकी के साथ जुड़े हुए हैं, और फोक जो ट्यून्स हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं, जिस तरह तू तक तूतिया मैंने आपको बताया, तो वो भी टाइमलेस रहता है. बिल्कुल है भाई. और वो एक मिनट, वो आप ये भी देखें कि आपका जो सो कॉल्ड यहाँ पर मॉडर्न पॉप म्यूजिक भी हिट हुआ है, उसमें वो ज़्यादा हिट हुआ है जिसमें फोक का एलिमेंट है. सयोनी क्या है, जो हदीका ने गाया दुपट्टा मेरा मलमल था, क्या है वो, उसमें फोक का एलिमेंट है. आज भी फोक गाया जाता है. एक्चुअली वो उसका ताल्लुक है उसकी कॉम्पोजिशन से भी, राइट, बट वो फोक का एलिमेंट आ रहा है ना उसके अगेन अंदर. वही म्यूजिकल सोच की बात पे आ जाते हैं. अच्छा, एक सवाल भी है तो उसका भी मैं यूसुफ, जवाब आप साथ कहाँ, साथ यूसुफ के लिए साथ सवाल है, व्हाट दे एडवाइस देता हूँ. विल यू गिव टू द यंगस्टर्स हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? कैन यू शेयर फ्यू स्टेप्स फॉर सक्सेस? अच्छा, और ये अच्छा, ये ज़रा ये अभी यूसुफ ने बात कही थी ना कि आपको फ़ौरन सक्सेस के स्टेप्स चाहिए होते हैं, लर्निंग के स्टेप्स नहीं चाहिए होते हैं. पहले लर्निंग आएगी फिर सक्सेस आएगी. अच्छा, मैं सक्सेस को इस हवाले से देख रहा हूँ कि वो कुछ कर सके, बजा सके, उसको इंस्ट्रूमेंट में महारत हासिल कर सके, मैं उसको सक्सेस ले रहा हूँ. और जो ये सवाल है, इसका ताल्लुक इनके लिए जो सवाल था उससे भी है, क्योंकि अगर आप म्यूज़िक को महदूद कर देते हैं सिर्फ लिरिक्स के ऊपर या गाने बनाने के ऊपर, तो देखिए गाने में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई पीछे बाजा भी बज रहा है, उसकी ताल, उसके साथ सितार, गिटार, फ्लूट, जो ये सारे साज बजाने वाले लोग, हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ तक आने तक कि ये ख़त्म होते जा रहे हैं. बिल्कुल.
म्यूज़िशनशिप ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि हम बच्चों को हम उनके मैथ के ट्यूशन्स के लिए 4-4 हज़ार रुपये माहाना दे देंगे, उनको भेजेंगे और वो रट भी लेंगे वो पेपर में क्या करना है और वो भूल भी जाएंगे, लेकिन हम साज सिखाने के लिए पैसे देना नहीं चाहते. That's the problem. So you have to invest first of all in a proper उस्ताद जो उस साज बजाने में महारत हासिल करे, उसको आप इज़्ज़त दें और उनसे भी एक्सपेक्ट करें उतना ही डिसिप्लिन सिखाने में जितना आप अपने बच्चे से भी एक्सपेक्ट करें कि रोज़ चाहे उसका होमवर्क भी रहता हो 15 मिनट, और 15 मिनट बहुत हो सकता है एक साज के साथ, 15 मिनट भी साज के साथ बैठ के रियाज करे. Absolutely. इफ़ यू वांट स्टेप्स, वो 15 मिनट 20 हो जाएंगे, वो 20 आधा घंटा हो जाएगा, फिर हाथों को या गले को उस साज की लत लग जाएगी आदत बढ़ और फिर वो 3-3 4-4 घंटे भी हो जाएगा. एक Those और are the क्वेश्चन आ steps गया for जी, इस success. पर भी थोड़ा सा शेड लाइट ऑन दिस. व्हाट डू यू थिंक ऑफ द ईस्टर्न म्यूजिक गेटिंग मोर एंड मोर इन्वॉल्व्ड विद द वेस्टर्न म्यूजिक? जी तो ये तो यूसुफ जो है ना इस पे फट पड़ेगा. नहीं, ये आपका है, वो ये कहता आपका है तबाह कर दिया ईस्टर्न म्यूजिक को, सारा ईस्टर्न म्यूजिक वेस्टर्न म्यूजिक बना दिया. उसकी पेट पीव है सर ये. अच्छा, इसका मैं एक हवाला दे देता हूँ इसका जवाब देने के लिए. देखें, आप एक ऐसी दुनिया इमेजिन करें कि आप पाकिस्तान में बड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन आपने दाल, भिंडी, आलू गोश्त, निहारी, बिरयानी, ये कुछ भी नहीं चखा, खाया ही नहीं, तो क्या होगी आपकी खुराक? भाई जो कुछ भी आपको मिला होगा वो बर्गर ही होंगे या शायद कोई सैंडविच या रूखी सूखी कुछ होगा. बीफ बनाने के तरीके दुनिया में हैं, लेकिन निहारी की लज्जत आप लोग जानते हैं. अब मैं आपको निहारी को सैंडविच की शक्ल में दूं तो आपको कैसा लगेगा? यही हो रहा है हमारी मौसीकी के साथ. इसमें मैं कोई मिन्स नहीं करूंगा, मुझे कोई पॉपुलैरिटी से कुछ वो है ही नहीं. आप सक्सेस की बात कर रहे हैं, मैंने अपने तबला बजाना है, मैंने रियाज़ करना है और मैंने लोगों में इल्म मौसीकी फैलानी है. लेकिन जो हो रहा है आजकल, उसको जो है वो कह दें कि आप निहारी को सैंडविच की शक्ल में पेश करके दे रहे हैं और उन लोगों को दे रहे हैं जो निहारी खाने के आदी हैं. क्यों? हम मशरिकी मौसीकी को मगरबी लिबास में क्यों पेश किए जा रहे हैं? क्या हमारी मौसीकी इतनी कमज़ोर है कि पाकिस्तान का कोक स्टूडियो फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्यों ज़िम्मेदारी ले रहा है कि वो किसी मशरिकी चीज़ को पूरी की पूरी मगरबी लिबास में पेश करके आपको दे, और वो भी आपको जो आप हैं ही मशरिक के. अच्छा, सॉरी, आई विल हैव टू कट यू बिकॉज वी आर एक्सीडिंग द टाइम. आई जस्ट कंक्लूड कि मैं थोड़ा सा आपसे डिफ़र करूंगा, जसारत चाहूँगा कि नहीं, कॉम्बिनेशंस होने चाहिए. कोक स्टूडियो ने जो बहुत बड़ा काम किया वो ये है कि बाज़ वो वाले गाने और वो कव्वालियाँ और वो गीत जो मिट गए थे जहनों से, वो आज की जनरेशन को पहुँचाए. ये काम हिंदुस्तान से जगजीत सिंह ने किया जब उसने गालिब को एक बच्चे तक पहुंचा दिया, वरना मिर्ज़ा गालिब को सुनने वाला कोई ना रहता, उन्होंने उसको पहुंचा दिया. तो इसमें कोई कबाहत नहीं है. लेकिन फ़र्क ये था, एक मिनट, फ़र्क ये था कि जगजीत सिंह ने मशरिकी मौसीकी के बेसिस पे उसी को पहुंचाया और यहाँ पे अंदाज नहीं, ये बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका ताल्लुक है, इसका ताल्लुक है इल्म मौसीकी के ना होने का नतीजा. So please understand कि we are a very gullible audience now because we do not understand our own music. We have no idea what it is. आपके पास कोई भी आ जाएगा कुछ म्यूज़िक सिखाने, अगर वो बजा रहा है वो आप ले लेंगे, क्योंकि हमने एक तो हमारी अपनी मौसीकी को कुछ लोगों ने उसको हराम कह दिया, कुछ लोग उससे दूर हट गए और कुछ लोगों ने कहा कि ये मॉडर्न नहीं है. चले, लेट्स अदरवाइज ये टॉपिक बहुत बड़ा है. आई नो इट कैन गो ऑन एंड ऑन, बट जस्ट टू कंक्लूड मैं ये समझता हूँ कि क्लोजिंग ये है कि अपने माइंड्स को ओपन रखना चाहिए. जैसे उन्होंने मिसाल दी, मुख्तलिफ तरह के खाने होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आप नहारी और आलू गोश्त खाते हैं तो आप बर्गर खाना छोड़ देते हैं. ये बात दूसरी है कि कभी आपको बर्गर पसंद आएगा, कभी नहारी पसंद आएगी. बिल्कुल. तो मैं ये कहूँगा बर्गर भी खाएं, नहारी भी खाएं, मैक्सिकन भी खाएं. इन दोनों को बर्गर के साथ नहारी डिबो के खाने की ज़रूरत नहीं है. ये तो लेट्स कंक्लूड ऑन दैट.
थैंक यू वेरी मच, यू हैव बीन एन एक्सीलेंट ऑडियंस एंड आई होप कि हम लोगों ने कुछ आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव बातें आप तक पहुंचाई होंगी. थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग अस दिस प्लेटफॉर्म.